Hello everyone, my name is Shivangi Gupta and today we will study the chapter Evolution, some important topics and the important questions which come in this chapter. And some curious things about this chapter are this chapter tells about the evolutionary biology. It is a study of history of life forms on the earth. ये जो चैप्टर हमें एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में बताएगा, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स के बारे में बताएगा कि कब लाइफ फॉर्म आई थी धरती पे, कैसे कैसे वो इवॉल्व हुई, क्या म्यूटेशंस आए, कैसे कैसे स्पीशीज़ हुए और हर एक स्पीशीज़ का ऐसा अडेप्टेशन क्यों है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. For the millions of years, there has been continuous gradual changes in the flora and fauna found on the earth. It is the story of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on the planet of Earth in the context of evolution of Earth and against the background of evolution of universe itself. ये पूरा स्टोरी बताएगा ये चैप्टर कि लाइफ फॉर्म्स कैसे इवॉल्व हुए, कैसे बायोडाइवर्सिटी बनी, कैसे कैसे स्पीशीज़ आए, किस जोन किस टाइम स्पैन पे कौन सा स्पीशीज़ आया, किस टाइम स्पैन पे वो एक्सटिंक्ट हुए और बैकग्राउंड क्या था यूनिवर्स के एवोल्यूशन का, वो सब इस चैप्टर में पता चलेगा. The entire unit of genetics and evolution carries 18 marks in board examination. So this unit is very important and in NEET examination 1 to 2 questions are asked from this chapter. So in this chapter we will cover the origin and evolution of life forms, the different theories that the scientists put forward for the evolution of life forms. नेक्स्ट द एविडेंसेस ऑफ द एवोल्यूशन कि हमें कैसे पता चला कि ये स्पीशीज़ था, ये एवोल्यूशन हुआ है, उसके एविडेंसेस. नेक्स्ट द अडैप्टिव रेडिएशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द एवोल्यूशन एंड द ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन. Now the first question is, how does life originated on earth? List the different theories that scientists put forward. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि धरती पे लाइफ का जन्म कैसे हुआ और कौन कौन से डिफरेंट थ्योरीज थी जो साइंटिस्ट ने रखी. There was no atmosphere on the early earth. Water vapor, methane, carbon dioxide, ammonia released from the molten mass covered the surface. The UV rays from the sun broke up water into hydrogen and oxygen, and the lighter hydrogen escaped. Oxygen combined with ammonia and methane to form water, carbon dioxide and others. The ozone layer was formed. As it cooled, the water vapor fell as rain to fill all the depressions and form the oceans. Life appeared 500 million years after the formation of Earth, that is almost 4 billion years back. क्या था कि अर्ली अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था. वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो था वो मोल्टन मास से निकले. तो जो यूवी रेस आ रही थी सन से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हुई और जो लाइटर हाइड्रोजन था वो निकल गया. और अब ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ब्रेक हुए हैं उसमें से जो ऑक्सीजन था जो मोल्टन मास से कंपाउंड निकले थे वो उसके साथ अटैच हुआ और उसने पानी, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी चीज़ें बनाई. उसके बाद ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ. जैसे ही वाटर वेपर जो है वो ठंडे होने स्टार्ट हुए तो बारिश शुरू होगी और उस बारिश से जितने भी गड्ढे बने थे धरती पे वो सब पानी से फिल होने लग गए और उन्होंने ओशंस बना लिए. इस तरह जो लाइफ है वो 500 मिलियन ईयर्स अगो अपीयर हुई थी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जो कि मतलब 4 बिलियन ईयर्स बैक लाइफ वॉज ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ. The different theories are theory of special creations, theory of panspermia, theory of spontaneous generation, chemical theory. It was given by Oparin and Haldane. It is the most important theory. Organic theory was given by Urey.
and Miller. This is also very important. नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसमें वो स्वॉन नेक वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था. नेक्स्ट इज व्हाट डिड चार्ल्स डार्विन ऑब्जर्व्ड ऑन हिज शिप वोएज ऑन HMS बीगल, डिफाइन द डार्विनियन फिटनेस. Answer: He noticed the finches on the island were similar to the finches from the mainland, but showed certain characteristics that helped them to gather food more easily in their specific habitat. तो डार्विन ने इस जर्नी में क्या देखा कि जो फिंचेस थे आइलैंड्स पे वो सिमिलर थे मेनलैंड से, बट उन्होंने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स में उनकी थोड़ी थोड़ी चेंजेस थी ताकि वो अपना फूड अच्छे से गैदर कर पाए अपने स्पेसिफिक हैबिटेट के अकॉर्डिंग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द डार्विनियन फिटनेस. अकॉर्डिंग टू डार्विन द फिटनेस अल्टीमेटली एंड ओनली रेफर्स टू द रिप्रोडक्टिव फिटनेस. मतलब जो इन्वायरमेंट में अच्छे से फिट हो पाएगा और अच्छी प्रोजेनी दे पाएगा, अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, वही नेचर द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा और उसी को ही हम डार्विनियन फिटनेस बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, व्हाट डिड नर्स्ट हैकेल प्रपोज्ड एंड हु डिसअप्रूव्ड दिस एंड व्हाई. अब पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होते हैं? लाइफ फॉर्म्स वेराइड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन्स. Hence, new life forms of life have arisen at different times in the history of Earth. This is called paleontological evidence. ये बताता है कि डिफरेंट टाइम स्पैन पे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स ओरिजिनेट हुए थे और इन न्यू फॉर्म्स ने डिफरेंट टाइम्स को जन्म दिया था. तो इस चीज़ को हम paleontological एविडेंस बोलते हैं. नेक्स्ट है नर्स्ट हैकेल ने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, जो कि बेस्ड थी अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस कॉमन टू द ऑल वर्टेब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन द एडल्ट. इन्होंने बताया था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में हर एक एनिमल और या फिर वर्टेब्रेट सब सेम होते हैं. इनकी जो थ्योरी थी वो कार्ल लुईस वॉन बेयर ने डिसअप्रूव कर दी थी, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट टू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ द अदर एनिमल्स. उन्होंने कहा कि हम एम्ब्रियोज को एज एन एवोल्यूशन नहीं ले सकते, क्योंकि नर्स्ट हैकेल ने कहा कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के जो फीचर्स होते हैं हर वर्टेब्रेट में सेम होते हैं और इसी से वो आगे बड़े होते हैं, जो कि एडल्ट में एब्सेंट होते हैं. जब वो डर बन जाता है तो वो एब्सेंट हो जाते हैं. लेकिन कार्ल लुईस वॉन बेयर ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. एम्ब्रियोज में जो कैरेक्टर्स होते हैं हर एक वर्टेब्रेट के, वो आगे जाकर एडल्ट स्टेजेस में नहीं शो करते. इसका मतलब ये नहीं कि वो एवोल्यूशन का पार्ट होगा. नेक्स्ट इज व्हाट आर होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, गिव एग्जांपल, आल्सो एनलाइटन व्हाट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. The same structures developed along different directions due to adaptations to different needs is divergent evolution and these structures are the homologous. अब जो एनिमल्स का स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन फंक्शंस अलग होंगे उन्हें हम होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं, जैसे कि बोन्स ऑफ द फोर लिम्स इन व्हेल, बैट्स, चीता एंड ह्यूमन. अब जिनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा लेकिन फंक्शन सेम होगा उनको हम एनालॉगस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं और इसे हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं, जैसे कि आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स एंड द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स. अब आँख का काम तो सेम है ना देखने का, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग है. अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. क्या होता है? द डार्कनेस ऑफ द स्किन, फेदर्स और फर एक्वायर्ड बाय पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन एन इंडस्ट्रियल रीजन. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म इंडस्ट्रीज के स्मोक या उनके पोल्यूशन के कारण अपनी स्किन उनकी डार्क हो जाती है, उसको हम इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कहते हैं. Next is Darwinian finches as Australian marsupials. Explain which phenomenon explain.
डार्विनियन फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल कौन सा फिनोमिनन एक्सप्लेन करते हैं? दैट इज द अडेप्टिव रेडिएशन. The most important, the process of evolution of different species in given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography is called adaptive radiation. मतलब एक ऐसा प्रोसेस एवोल्यूशन का जिसमें जो डिफरेंट स्पीशीज़ है वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया से जन्मे थे, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में बट गए अकॉर्डिंग टू द एरियाज ऑफ जोग्राफी, मतलब हैबिटेट्स, जिसे हम अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं. अ नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट. अब जितने भी मार्सुपियल्स थे वो अलग अलग जगह पे चले गए एंसेस्ट्रल स्टॉक, फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक, बट वो सब ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट से ही हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज सॉल्टेशन एंड हु ब्रॉट दिस आइडिया ऑफ म्यूटेशन. The single step large mutation is called the saltation and D. Various brought this idea of mutation. मतलब एक सिंगल स्टेप से बहुत बड़ी म्यूटेशन हो जाना उसे हम सॉल्टेशन कहते हैं. What is Hardy-Weinberg principle and what are the factors affecting their principle? It is very important topic, the Hardy-Weinberg principle. This principle says that allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. अब ये जो बताता है कि जो अलीलिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो स्टेबल होती हैं एंड दे आर कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. इसका हमारे पास में ये जो इक्वेशन है ये बताता है कि जो अलील फ्रीक्वेंसी है in a population it is stable and it is constant from generation to the generation. Okay, जो डिफरेंट फैक्टर्स हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को इफ़ेक्ट करते हैं वो हैं द जीन माइग्रेशन, जीन जिसे हम जीन फ्लो भी कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, genetic recombination and natural selections are the factors affecting this principle. Gene migration या gene flow, genetic drift, mutation, genetic recombination. gene migration या gene flow मतलब genes जो है मतलब पर्टिकुलर जीन आगे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें माइग्रेट हो रही हैं सिमिलर जीन्स. जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि जीन्स का ड्रिफ्ट हो रहा है. आप समझ सकते हैं कि मतलब एक जीन से अलग जीन, या ये भी इट इज़ समवट सिमिलर टू द म्यूटेशन कॉन्सेप्ट ओनली. नेक्स्ट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब कैसे जो जीन्स हैं वो रिकम्बाइन होके एक नया जीन बना रहे हैं, एंड द नेचुरल सिलेक्शन. ब्रीफली एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ मैन. सो फर्स्ट वन वॉज द ड्रायोपिथेकस ape-like and the Namapithecus, which were the man-like. They appeared 15 million years ago and their characteristics were they were hairy and walked similar to the chimpanzees. Next 3 to 4 million years ago man-like primates arises. They were not tall but walked straight. 2 million years ago Australopithecus, also called the Homo habilis, lives in East Africa. Australopithecus और Homo habilis वो 2 million years ago आए थे. They used stones, weapons and ate fruits. Human like brain capacity, इनका brain capacity कितना था? 650 to 800 cc. They were not the meat eaters. 1.5 million years ago Homo erectus arose and their brain capacity was 900 cc and they were the meat eaters. 1000 to 40,000 years back Neanderthal man were present and their brain capacity was 1400 cc, and 75,000 to 10,000 years ago the modern human sapiens were evolved.
These are some of the features: Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthals, and Homo sapiens. Summary: at the end of the chapter, the student will be able to understand the entire process of how life originated on Earth and how it evolved over the time, how the chemical based evolution occurred, the formation of biomolecules, the Darwinian concepts of evolution that follows the natural selection. We learned various evidences that supported the evolution. We learned the evolution of plants and certain animals. We also gained knowledge that how human evolved over the time. At the end, we were able to conclude that evolution was a gradual process that finally leads to the stabilization as learned through the Hardy-Weinberg principle. Thank you.